एवरीबॉडी, जय श्री कृष्ण। आज हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले जो आता है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझना है हमें। तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नॉर्मली हम बोलते हैं जैसे डिस्टेंस दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, it has only magnitude, and displacement is a vector quantity. It has a magnitude plus direction. So scalar quantity, any scalar quantity has only magnitude. That is the major difference between distance and displacement. देखो distance जो होता है it's called path length. It means आप जो भी path cover कर रहे हो उसकी जो length है it's called distance. And displacement, तो displacement का relation उस path से नहीं है. Displacement it means final position minus initial position. Okay, right now we draw one graph and then try to understand more. Suppose we are taking XY coordinate system. And suppose यहाँ पे हम सोचते हैं एक जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका कुछ पाथ इस तरह का है, तो उसका पाथ जो है जैसे इस तरह का कर्व पाथ है, हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। जैसे एक पॉइंट ले लेते हैं ए पॉइंट, और वो ए पॉइंट से आ रहा है बी पॉइंट पे, और उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो ए टू बी है। देखिए अभी मैंने छोटे छोटे जो एरो ड्रॉ किए वो शो कर रहा है कि भी एक ऑब्जेक्ट, एक जो चीज है वो ए से लेके बी तक मूव हो रही है। ओके, राइट नाउ ए के लिए हम जब वेक्टर पोजीशन के बारे में बात करेंगे, ओके, वेक्टर पोजीशन किसको बोलते हैं तो यहाँ पे समझ सकते हो आप। तो वेक्टर पोजीशन इट मींस जिसको ओरिजिन से जो पोजीशन है उसको जो जोड़ता है वो वेक्टर, इट्स कॉल्ड, जैसे मैंने इसको नाम दिया इसका R1 वेक्टर। Second one R2 vector, that is the vector position of B, particle B, place B. तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है ऐसे जाके इस तरह से, तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट रहता है और क्या डिस्टेंस रहता है। जैसे मैं इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ रिलेशन है R2 माइनस R1, यानी कि फाइनल पोजीशन से लेके इनिशियल पोजीशन को जो जोड़ता है इट्स गिव डिस्प्लेसमेंट। और जो पाथ होता है इसका ए से लेके जो पूरा पाथ और उसकी जो लेंथ है इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, राइट नाउ वी try to understand in the mathematical form. Suppose हम ले लेते हैं जैसे R1 वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे R1 वेक्टर इट इज इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, so you can say its one coordinate is X and second one is Y, so we can write XY. Okay, we can write XI caret plus YJ caret also. If we want to get the magnitude of R1 vector, so R1 vector is equal to under root x square plus y square. Same way you can represent R2 vector. So it's called, suppose we are taking it is x1 y1,
So because of we have 2 points, so we can explain well x1 square y1 square. Second R2 is called, suppose x2 y2. So we can write x2 I caret plus y2 j caret. If you want to get the magnitude, we can draw the mode of R1 vector. Same way we can draw here R2 mode of R2 vector. Otherwise we can write only R2. It's called magnitude of R2. So under root x2 square plus y2 square. In this way we can represent any vector position. Okay, right now our displacement is A to B. A to B, that is the delta R vector. So delta R vector, that is the displacement. So here we can write displacement delta R vector is equal to R2 vector minus R1 vector. So in the vector quantity we can write this way, that is the difference, because of in that case of the parallelogram, suppose that is the one vector, that is the second vector, we can draw the parallelogram and the major diagonal gives addition and smaller diagonal gives subtraction. So in that case, when we join the both head, we can write it is the difference. So that is the displacement. If we want to get R1 vector plus R2 vector, so in that case the major diagonal gives R1 vector plus R2 vector. But right now we don't want that. We want only delta R vector, means difference, and it is displacement. It is displacement here. So in that case, in this way we can find the delta R vector. Okay, suppose we are taking one more, you can think what is the direction of delta R vector, displacement की direction कहाँ पे है. So you can think this way, this is the direction of displacement. Okay, same way we are taking one more example. Suppose we draw one circle and we convert this circle into, four parts. One is x coordinate system, second one is x coordinate and y coordinate. Y axis we are taking two axes, one is x, second one is y, and that is the origin. So suppose we assume one particle move from position A, and that is the unit vector. We are taking unit vector, it means the radius will be 1 meter. So that is the R1 is equal to 1 meter, and right now it moves anti-clockwise and reaches to particle B, and this particle vector position is R2 vector. Suppose it is R2 vector, it is R1 vector, but you can say both are radius, so both magnitudes are 1 meter. Okay, suppose it makes 60-degree angle. Suppose we think it is 60-degree angle, it's cover 60-degree angle with the origin. So in that case we think what is the path length and what is the displacement. Okay, first we think about the path length. Path length means distance. Okay, the particle moves from A to B and it's covered the 60-degree angle.
It means the distance of the arc AB, the distance, the length of the arc AB is equal to, it is the 360 degree for whole circumference. It is the 360 degree divided by 60 degree. So we get the, that is the sixth part, 360 by 66. That is the sixth part of the circumference. So we can write the length of the AB arc. It is sixth part of the circumference. It means circumference is equal to 2 pi r and its sixth part. So we can write 2 pi r is equal to 1 and this is the 6. So you can say the path length is pi by 3 meter. Okay, you can put the value pi is equal to 3.40 and you will get the answer. But right now our aspect is to understand what is the path length distance. So that is the path length. Okay, so I hope you understand well what is the distance. Okay, now we think about the displacement. Okay, in that case of the displacement, we draw one line and it join A to B. A to B. A to B. It is displacement. What is the displacement? You think that is a 60 degree, one side is 60 degree, that is 1 meter, it is 1 meter and the angle is 60 degree. So that's why you can say it is also 1 meter because of it is the equilateral triangle. So that is the 1 meter. So the displacement here, the displacement is equal to is equal to 1 meter. You can see the figure and write the answer directly because of it is the equilateral triangle. Okay, understood. I hope you understood well. Now the time to give homework. तो यहाँ पे मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ. आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इतना होमवर्क करने के बाद आगे सॉल्यूशन देखना. आई डोंट गिव होल सॉल्यूशन बट मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे दूंगा आपको कैसे करना है वो, बट यू कैन डू वेल. और ये जो PDF है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो PDF भी मिल जाएगी, पूरे लेक्चर्स की PDF. ओके, राइट नाउ होमवर्क में आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ 60 डिग्री लिया वैसे आपको सोचना है. फर्स्ट एग्जाम्पल, you think for 30 degree. Second, you think for 45 degree. Third one, you think for 90 degree. हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आता है और हर एक केस में डिस्टेंस क्या आता है वो आपको कैलकुलेट करना है. फोर्थ नंबर में आप सोचो 120 डिग्री, फिफ्थ नंबर में सोचो 180 डिग्री और सिक्स नंबर में सोचो 270 डिग्री और मैनी मोर यू कैन मेक. आप इस तरह से इतना समझ लोगे तो आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट हो जाएगी. जैसे मैं क्या एग्जांपल ले लेता हूँ, 120 डिग्री ले लेता हूँ. जैसे 120 डिग्री आपने यहाँ पे लिया तो उसका मतलब ये जो बी पॉइंट है ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कोई जगह पे आ जाएगा. तो आप सोचो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, आप फाइंड करो. आप फाइंड कर सकते हो. ट्राई योर ज्योमेट्री के जितने भी फंडा है आप अप्लाई करो.
आंसर मिल जाएगा, नहीं मिले तो मुझे क्लास में पूछ लेना। सेकेंड थिंग, ये जो है इसने जो पाथ कवर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक बी पॉइंट तक का, वो 120 डिग्री होता है, तो दैट इज द 360 का 120 कौन सा पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट 3। तो इट मीन्स दैट इज द सर्कमफरेंस जो होता है उसका थर्ड पार्ट इसने कवर किया है, दैट इज द पाथ लेंथ। गॉट इट? तो पाथ लेंथ फाइंड कीजिए, दैट इज द डिस्टेंस। एंड आप जो डायरेक्ट ए से लेके बी, जैसे यहाँ पे 180 पे आ जाता है बी पॉइंट, तो आप सोचोगे तो कितना मिलेगा, तो वो सीधा समझ में आ जाएगा कि दैट इज द 2r डायामीटर, यानी कि 2 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना होगा, तो आप इसने जो हाफ यानी कि 2πr का सरकमफरेंस का हाफ यानी πr मिलेगा आपको। ओके, सो दिस वे यू ट्राई एंड गेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस से हमें कुछ मिलता है, जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, और वो दोनों साथ में समझते हैं। इट इज़ द स्पीड एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी। सेम ऐसे ही है जैसे डिस्प्लेस स्पीड के लिए सोचना है, तो स्पीड इट इज़ अ वी का मतलब होता है डिस्टेंस अपन टाइम, और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ओके, अब जब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तब सीधी बात नहीं होगी, उसके अंदर दो तरीके की थॉट प्रोसेस लगेगी। वन इज एवरेज वेलोसिटी एंड सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, अदरवाइज पूरे फिजिक्स में आपको हैरान करेगा। दैट इज द वेक्टर। जैसे वेक्टर समझ में आ गया तो ये चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। देखो, पहले मैं स्पीड के एवरेज के बारे में बात करता हूँ। एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड का मतलब ऐसा होता है कि टोटल पाथ लेंथ, जैसे इसको एवरेज इस तरह से लिखते हैं, दोनों तरफ इस तरह के ब्रैकेट बनाते हैं, अदरवाइज वी ए वी जी लिखते हैं, अदरवाइज वी बार लिखा जाता है। दीज आर द सिंबॉलिक लैंग्वेज फॉर द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के अंदर हम ऐसा लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपन टेकन टाइम। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया। ओके, तो टोटल डिस्टेंस, सपोज हम एक एग्जांपल वही लेके चलते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें जो ऊपर वाला जो एग्जांपल है, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, ए टू बी तक आने के लिए π/3 कवर किया इसने। और सपोज मैं बोल देता हूँ आपको कि इसके लिए इसने जो टाइम लिया था, जो टी लिया था, दैट इज़ द आप ले लो 10 सेकेंड। ओके, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है π/3 और टाइम टेकन कितना है 10, सो π/30, और इसका यूनिट बनेगा मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज योर आंसर। So in that way you think about the average speed. Clear? That is the average speed. Okay, speed, that is the scalar quantity, so that's why it has no direction, it has only magnitude. Okay, right now we think about the instantaneous speed. Instantaneous speed. देखो, इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब ही ऐसा निकलता है कि तुरंत, जैसे आता है ना इंस्टेंट ढोकला, इंस्टेंट दाबेली, बाजार में हम लेने जाते हैं तो वो मिलता है, इंस्टेंट मिलता है। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, उसी टाइम पे, उसी
उसी क्षण पे, उसी पॉइंट पे, यानी कि जैसे आप 10th सेकंड की बात करो तो 10th सेकंड पे क्या स्पीड है। ओके, कोई मुझे बताएगा कि भाई जब आप एक एक्टिवा लेके जा रहे हो और अचानक आपकी मामा का फोन आया और आपने मोबाइल कैसे उठाया, एक्टिवा रोक के नहीं उठाया, क्या किया, जैसे करते हैं ना सब लोग, ऐसे कान पे लगा देते हैं। तो ऐसे कान पे लगा के चालू एक्टिवा में आप मामा से बात करो और मामा बोल रही है आपसे कि बेटा कितनी स्पीड से जा रहे हो, और उस टाइम पे सीधी आपकी नज़र जाएगी कहाँ पे, स्पीडोमीटर पे, और वो जो स्पीडोमीटर जो दिखाएगा वो आपकी स्पीड होगी। हाँ होगी 60 और आप बोलोगे 20, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्पीड आपको, जो स्पीडोमीटर में दिखाई दी उसी टाइम पे, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। जैसे एवरेज में वैसे नहीं होता है। एवरेज में जैसे ऐसा होता है कि जैसे आप डीसा से लेके पालनपुर गए तो 30 किलोमीटर है, तो आप क्या करोगे यार, 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, आप घड़ी में देख लोगे कि कितना टाइम हुआ, 30 मिनट लगा, तो आपने क्या किया, 30 किलोमीटर पर 30 मिनट, यानी कि 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड आपकी जो आई, दैट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड। बट इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि जैसे डीसा से आप बैठे और आपकी गाड़ी को आपने, जो आपकी स्पीड है गाड़ी की, वो 1 किलोमीटर पर आर पे आपने फिक्स कर दी, आपका एक्सीलेटर फिक्स कर दिया, फिर आपने उसको कभी कम भी नहीं किया और फास्ट भी नहीं किया, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से गए, ऐसा तो इसका मतलब होता नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, जैसे रसन आया, कोई बम्प आया तो वहाँ पे आपने स्पीड डाउन कर ली, फिर वापस स्पीड बढ़ा ली, कोई बीच में आ गई, गाय आ गई, वहाँ पे स्पीड डाउन किया, फिर स्पीड बढ़ा ली, लेकिन वो प्लस माइनस करते करते आपने टोटल डिस्टेंस लिया और अपन टाइम कर लिया। इट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, तो इंस्टेंटेनियस में हमने किया क्या, जो 30 किलोमीटर थे उस 30 किलोमीटर को, जैसे हमने यहाँ से ले लेते हैं डीसा टू, एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ डीसा, और यहाँ से मैं एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ पालनपुर। अब इसके लिए आपने 30 किलोमीटर कवर किया, ओके, 30 मिनट लगाई, ओके, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 30 किलोमीटर अपन 30 मिनट, तो लग गया किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट की आपकी स्पीड आई। लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए हमें वो नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, टाइम को कम करेंगे। जैसे 30 मिनट है तो हम सोचेंगे पहले 50 मिनट के बारे में सोचेंगे, फिर उससे भी कम सोचेंगे, टाइम को डेल्टा टी टेंस टू 0 करते जाएंगे, यानी कि टाइम को इतना छोटा करते हैं कि उसको 0 के नज़दीक लेके जाएंगे। और इसको हम मैथ्स में बोलते हैं लिमिट ली। हमने क्या किया, हमने लिमिट ली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लेंगे, यानी कि हमने टाइम को छोटा करते एकदम छोटा कर लिया और 0 तक लेके आए, तो जो हमारी एवरेज स्पीड है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू dx/dt मिलेगा। ओके, तो समझ में आ गया इंस्टेंटेनियस अल्टीमेट क्या होता है। जैसे मामा का फ़ोन आया, उसने पूछा, आपने तुरंत देख के बोला कि हाँ मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूँ, सो दैट इज़ इंस्टेंटेनियस। और आपकी मामा ने ऐसे पूछा कि बेटा आप डीसा से पालनपुर कितने टाइम में गए, कितनी स्पीड से गए, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस करोगे और बाद में टोटल टाइम करोगे, और जो आंसर निकलेगा उसको हम आंसर देंगे। ओके, तो इन दिस वे, सेम वे वी थिंक अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब स्पीड आती है तो उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है।
सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना। देखो यहाँ पे आप यूनिट भी बना सकते हो। यूनिट तो देखो एवरेज हो कि इंस्टेंटेनियस हो, दोनों केस में यूनिट तो सेम ही आता है, और वो क्या होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। बट अब हम सोचते हैं इसके बारे में, अब हम हमारा दिमाग लगाते हैं वेलोसिटी के बारे में। ये पूरे फिजिक्स में जो समझना है वो समझना है उसकी डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड सिंपल चीज़ हो जाती है, जब डायरेक्शन उसके अंदर ऐड होता है तब दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठंडा क्लियर उसमें ही करना है। तो वेलोसिटी, उसमें हम वर्ड यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले एवरेज वेलोसिटी समझ लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए हम पहला वाला जो ये हमारा फिगर है उसको उठाते हैं यहाँ से। तो भाई उठ जाओ। वापस वही एग्जांपल लेते हैं। ओके, देखते हैं अब इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर हम सोचते हैं कि चलो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वो हमने आगे देख लिया। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना निकल रहा था, डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा आर बोलते हैं हम, वो कितना निकल रहा था 1, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इट इज़ द 1 मीटर निकल रहा है। एवरेज वेलोसिटी के केस में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई वी पुट द वेक्टर सिंबल ऑन द v। तो v वेक्टर ओवर द v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा r वेक्टर अपन डेल्टा t। ओके, हमने टाइम बोल दिया आपको भाई कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने 1, और टाइम कितना लिया 10, कहने का मतलब 0.1 मीटर सेकेंड इनवर्स, वो आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्लियर। सो एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गई। हाँ, तो हमने क्या किया, तो मैग्नीट्यूड फाइंड किया भाई। मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसकी डायरेक्शन जुड़ी हुई होती है। तो डायरेक्शन के लिए हम आप सोचोगे तो डायरेक्शन कहाँ पे मिल रही है, देखो सोचो, डेल्टा आर कहाँ मिल रहा है, इस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो डेल्टा आर यानी कि वी वेक्टर एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ओके, और अब जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज ऑन टेंजेंट, और उसको कैलकुलेट हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे, जैसे इसको 1/10 नहीं करेंगे। वो तो ये होगा कि जब बी पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट है और कितनी स्पीड से जा रहा है, वो जो स्पीड आएगी इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, v, लेकिन एवरेज नहीं लिखेंगे, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। इसको हम एवरेज को इस तरह से लिखते थे, और इसको हम ओनली v लिखेंगे, v वेक्टर। v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट, जैसे हमने ऊपर लिया था लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r वेक्टर अपन डेल्टा t वेक्टर। हमने टाइम को छोटा करते करते बहुत छोटा कर दिया, और नाउ वी आर गेटिंग द डेरिवेशन फॉर्म ऑफ डेल्टा।
डेल्टा का हमें डेरिवेशन फॉर्म मिलता है। डेरिवेशन फॉर्म का मतलब आपको क्या समझना है, इट इज़ वेरी 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 स्मॉल, इट इज़ फॉर वेरी स्मॉल टाइम। कितना स्मॉल टाइम, तो टेंस टू जीरो। जीरो मत करना, जीरो करोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, लेकिन टेंस टू जीरो। क्लियर। तो वी वैक्टर इज इक्वल टू डी आर वैक्टर अपन डी टी। इसके यूनिट के बारे में सोचोगे तो वही यूनिट तो सबका वही आ रहा है, क्या, मीटर सेकेंड इनवर्स। लेकिन जो यहाँ हमें दिमाग लगाना है वो यहाँ पे लगाना है कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। क्योंकि देखो मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में तो बोल दिया कि चलो भाई एक चीज़ यहाँ से जा रही है जैसे 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और उसने आगे जाके ब्रेक लगाई और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड किया, तो यहाँ की इंस्टेंटेनियस स्पीड 5 मीटर। जैसे वो आगे बढ़ रहा है स्पीड बढ़ा रहा है, बढ़ाते यहाँ पे आ गया और उसकी स्पीड 20 हो गई, तो इसकी स्पीड 20 पर मीटर स्क्वायर। जैसे आगे बढ़ रहा है स्पीड डाउन कर रहा है और यहाँ पे आया तब उसकी 10 हो गई। तो जैसे जिस पॉइंट पे जितनी स्पीड होती है वो शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इन दैट केस, यानी कि इस टाइप के केसेस में आप बोल सकते हो कि यार जो हर दोनों की मैग्नीट्यूड होते हैं किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि स्पीड तो उसको मैं मोड नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ दैट इज ऑलरेडी स्केलर, लेकिन वेलोसिटी के आगे मुझे मोड करना ही करना है। क्यों, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड, तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल मिलेंगे, किसके, वेलोसिटी और स्पीड दोनों के। ओके, राइट नाउ यहाँ पे वापस आते हैं, देखते हैं, सोचते हैं भाई सर ने अभी बोला, क्या बोला, तो भाई डेल्टा जो वी एवरेज है यहाँ पे मिल रहा है मुझे, तो मुझे वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, तो वो मुझे मिलेगी यहाँ पे टेंजेंट पे मिलेगी। जैसे मैं बोल दूँ इस पॉइंट पे मैं आ गया और मुझे बोलना है सर क्या इसका एवरेज वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, तो इस डायरेक्शन में, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पे मिलेगी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे आके मैं सोच रहा हूँ कि सर इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, तो ये रहा। यानी कि ये पॉइंट को उस पॉइंट के साथ जोड़ दो, वहाँ पे डेल्टा आर मिलता है और डेल्टा आर की डायरेक्शन इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, तो इट इज ऑन टेंजेंट। तो दैट इज द एंगल बिटवीन वी एवरेज एंड वी इंस्टेंटेनियस। ओके, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती नहीं है, वो दिमाग में आप समझ लो। क्लियर। बिकॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, उसके डायरेक्शन के लिए आप यू कैन राइट दिस वर्ड्स, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज ऑन टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंट पे होती है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं निकल रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम कभी नहीं हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे सोचो, कोई ऐसा पॉइंट निकालो जहाँ पे दोनों की स्पीड सेम आएगी, तो इस सर्कल पाथ में तो दैट इज पॉसिबल नहीं है, सर्कल पाथ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप उसको सोचो अच्छी तरह से। जैसे हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और ये आपका होमवर्क है, दैट इज अ होमवर्क। जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज द वाई एक्सिस एंड दैट इज द एक्स एक्सिस, so that is x, that is y। और इस पे मैं एक पाथ ढोक रहा हूं, जैसे इस पॉइंट से किसी पार्टिकल ने चलना शुरू किया, इस पॉइंट पे आया, वापस इस पॉइंट पे आया,
वापस यहाँ से मुड़ा और यहाँ से जाके ये यहाँ पे जाके टॉप हो रहा है। ओके, इस तरह का मैंने एक पार्ट ड्रॉ किया। दैट इज़ द ए पॉइंट, दैट इज़ द बी पॉइंट। अब आपको सोचना है, इसके मैं अलग अलग पॉइंट लिख देता हूँ। जैसे इसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ, यहाँ पे 2 बोलता हूँ, 3 4 5 11 और फाइनली बी पे। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे आप समझ लेना, और बाकी के सारे पॉइंट के लिए आप जैसे उसमें से मिनिमम आपको 10 सम बनाने हैं, 10 सम। ओके, देखो क्वेश्चन मेरा इतना है, सिर्फ हम डायरेक्शन समझ रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड के बारे में क्योंकि मैंने यहाँ कोई मेजरमेंट लिखा नहीं है, तो यू कांट फाइंड द मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर पाओगे, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर कर लो आप। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक जो चीज़ है वो 1 से लेके 3 तक जा रहा है एक पार्टिकल, तो उसके लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी कहाँ पे होगी? तो आप सोचोगे हाँ सर, ये दोनों को जॉइंट कर लेंगे, वहाँ पे आपको डेल्टा आर मिलेगा, और डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी वही वी एवरेज की वी एवरेज होगा। क्लियर? तो एक हो गया वी एवरेज की डायरेक्शन, यहाँ पे भी डन। अब इस पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ है, तो वो बोलोगे सर इसका पाथ तो बताओ कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ तो भाई ये है ना, ए से जा रहा है और बी की ओर जा रहा है, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन आप किस तरफ वो जा रहा है वो नहीं मालूम होगा, तो आप टेंजेंट किस डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे, क्योंकि टेंजेंट दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ हो पाएगा ना। जैसे मैंने इसकी डायरेक्शन ड्रॉ कर ली, ये जा रहा है ए टू बी जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे आप सोचोगे कि भी 3 पॉइंट है ना, तो 3 पॉइंट में दैट इज द वी इंस्टेंटेनियस, और ए जो आएगा यहाँ से जो दैट इज वी एवरेज, और इट इज द एंगल थीटा। अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भी कहाँ कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी पोजीशन पे 90 डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री, कौन सी पोजीशन पे 180 डिग्री बनता है, और कौन सी पोजीशन पे 0 डिग्री बनता है। इनके बीच का एंगल बिटवीन वी एवरेज वेलोसिटी एंड वी इंस्टेंटेनियस के बीच का एंगल कहाँ पे 0, 90 और 180 बन रहा है, फाइंड करो। एक आध एग्जाम्पल दिखा दूं मैं आपको। ओके, ऐसे पॉइंट आपको फाइंड करना है, जैसे A10 हो गया, A2 10, इसको आपने ज्वाइंट कर लिया, तब आप ऐसे आंसर दे सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, चलो 90 डिग्री कहाँ पे बनता है, तो आपको सोचना है 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है। 90 डिग्री तो जहाँ पे परपेंडिकुलर डाउन आ रहा है, यस, आप ऐसे कुछ सोच सकते हो। तो 90 डिग्री के लिए ओके, हम एक एग्जांपल ए ले सकते हैं, जैसे ए मैंने 6 पे ले लिया, और 6 पे जैसे ए हो गया, दिख रहा है 90 डिग्री, दैट इज़ द वी इंस्टेंटेनियस एंड दैट इज़ द वी एवरेज। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ 0 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो देखो ए से 10 को ज्वाइन कर रहा है, तो दैट इज़ द वी एवरेज वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आपको मिलेगा वी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे नहीं, इसके अंदर तो 180 मिल रहा है क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है ना, यस, और ये इस तरफ मिल रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी इस तरफ मिल रही है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरफ मिल रही है। कहने का मतलब दोनों के बीच का 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो वैसे आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं खुद से। गॉट इट? अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वो सेकेंड लेक्चर में हम लेंगे। इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो सेकेंड, एक लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक में बोल दूँ आपको। देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड के लिए थोड़े से 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसेप्चुअल, वो आपके दिमाग में डाल देते हैं। इसको मैं हिंट बोल देता हूँ। तो इतना पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में आ गया होगा कि भाई डिस्टेंस दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर हो सकती है, इक्वल हो सकती है, किससे? डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से।
देखो आप सारे केसेस देखो, देखो लीनियर पाथ होगा, कोई ऑब्जेक्ट ए से लेके बी पे जा रहा है जैसे, तो इस वाले केस में डिस्टेंस भी उतना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी उतना रहेगा, यानी बोथ आर इक्वल। बट जैसे कोई कर्व पाथ आ गया, ए से लेके बी तक इस तरह से जा रहा है, तो आप सोचोगे कि भाई यार सर ये तो जो है वो पाथ लेंथ है वो तो ज़्यादा हो गई, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो एक चीज़ होती है, और इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे कभी क्वेश्चन आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप, जैसे आप इसको दूसरे मीनिंग में ऐसे समझ सकते हो, देखो इसको मैं डिस्टेंस से हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलती है, एवरेज स्पीड। हाँ, डिस्प्लेसमेंट से हमें मिलती है वेलोसिटी। तो हम जब इसके अंदर ऐसा करेंगे, जब रेशियो लेंगे डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इज इक्वल टू, आप ऐसे भी बोल सकते हो, दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड अपॉन वेलोसिटी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कहने का मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, इक्वल हो सकता है, जब भी डिस्टेंस इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल हो गए, 5 हो गए, तो आंसर 1 आएगा। लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, जैसे 10 हो गया और ये 5 हुआ, तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। सेम चीज़ स्पीड में भी बनती है। ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो हमें एक लॉजिक के दिमाग में रखना है कि भी डिस्टेंस और स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ओके, लव यू ऑल एंड जय श्री कृष्ण। दूसरे लेक्चर में मिलते हैं फिर।